ठीक है। I remember in my growing up years, every time my father would inquire about my studies, and I would say, हो जाएगा, कर लेंगे. ट्रांसलेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. And I know it never happened. I never, followed up on those statements. And I believe, and I have no qualms in admitting that I've struggled with laziness in my life. और पढ़ाई के मामले में जब सवाल पूछा गया तो उत्तर यही था कि हो जाएगा, कर लेंगे. परंतु इस बात को मैं मानता हूं कि वो शायद हो नहीं पाया, और इस बात से मुझे ये मानना आपके सामने अंगीकार करना कि आलस से मैं जूझा हूं और जीवन में है, उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा. And Sheeja's biggest complaint is the fact that, when she was carrying Nivi, I helped nothing at home. And, Anushka, I did absolutely nothing to help her, and she still holds that against me. और शीजा कहती है कि जब मैं अनुष्का के साथ थी तो तुमने एक सैंडविच भी बना के मुझे नहीं खिलाया. सो खुद सैंडविच में बनाती थी, और वो आज भी मन मुटाव आज भी है. See, we laugh at these things, but it's absolutely serious a matter when it comes to the aspect of laziness. इन पे जब हम अभी बात करते हैं तो हंस जाते हैं हम लोग, परंतु आप इसको देखिए, इस प्रकार देखिए कि बहुत ही एक गंभीर विषय है. The reason why I say it is, as parents, when we go lazy about these things, please remember your children will imbibe these things and they will grow up lazy. और अगर आप अपने जीवन में आलस को प्रदर्शित करते हैं तो आप जितना भी अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे कि आलसी नहीं होना है, वो आपको देख के आलसी ही बनेंगे. And the fact is that it is very difficult for us to understand if we are really lazy, because it doesn't present itself like that. It can present itself in various forms and various ways which we may not, it will mask itself so well that we will not understand that we are practically lazy at heart, and therefore these are things that we portray it to be. जैसे हमने ऑफ साइट में ये बात करी थी, उस बात को मैं वापस दोहराना चाहता हूँ. जब भी हम लोग ईर्ष्या या आलस के बारे में बात करते हैं या घृणा के बारे में बात करते हैं, हमारा एक चित्रीकरण है. जब हम आलस के बारे में बात करते हैं तो हमें कुंभकर्ण याद आता है, या ऐसा कोई जो कि सोफा पे बैठा हुआ है, लेटा हुआ है. परंतु हम ये कोशिश कर रहे हैं आपके सामने ये दिखाने के लिए कई बार कि जिस प्रकार ये हमारे जीवन में दिखता है, वो उसको समझना, उसको भापना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसलिए ये जो पाप है ये बहुत ही घातक बन जाता है हमारे लिए. Because sin of laziness is a posturing of our heart which impacts our personality or character, and also the productivity for which we are created for. और क्योंकि आलस एक ऐसा पाप है जो हमारे दिल की जो प्रवृत्ति को ही बदल देता है, और जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें बनाया है, उस उद्देश्य को का ही हम उल्लंघन कर देते So the हैं. last week we did a session on what laziness looks like, और पिछले हफ्ते हमने देखा कि आलस किस प्रकार हमारे सामने दिखता है, and we said that there are 4 stages for laziness. और हमने 4 चीजों को आपके सामने रखा. We started off with laziness as in पहला- plain simple laziness. पहला आलस में ही हमने देखा कि आलस मतलब आलसी होता है. There are times when we are physically drained out. I mean, it's a possibility that we are drained out physically. और कई बार हो सकता है कि हम शारीरिक रूप से थक चुके होंगे. There are cases where you have issues like thyroid. Thyroid. If you have a thyroid which is like non-functional, how much ever you read the Bible, you will still be lazy, because physiologically you're lazy. You're not operational. Your body is not operational. अगर आप थायराइड से परेशान हैं तो आपको शायद कहीं ना कहीं आप अपने, क्योंकि आप उतना ताकत मिलेगा ही नहीं शरीर में, शारीरिक ताकत उतनी होगी नहीं, आप आलस में ही कई बार रहेंगे. So it's advisable, get to a doctor, get a thyroid test done, and get the medication so that you can be operational, you can be functional. अगर आपको थायराइड Don't make the physiological issue an issue to not work or not to do the good work that God has called us. अगर आपके जीवन में मुश्किल है, अगर आपको किसी प्रकार की दवाई चाहिए तो आप डॉक्टर के पास जाइए, थायराइड दिखाइए और उस दवाइयों को शुरू करिए, जिससे कि
परमेश्वर, जैसे हमने पिछले हफ्ते याद किया, राज्य के लिए जो हमें करना है उसमें करने में हमें कोई बाधाएं नहीं आनी चाहिए। Now, for example, I am not able to sleep well, and the doctor has asked me to be on a particular machine for helping me sleep. But the problem is, I've not gotten it done, and so then every morning when I'm waking up lazy, lethargic, fatigued, not able to work. So, what should I do? Continue? Just the way I am? Or do something about my own life? Because take care of your physiological aspects so that you can wholeheartedly get into God-given work. मुझे नींद की दिक्कत है, रात को नींद नहीं आता है, उसके लिए डॉक्टर ने एक मशीन बोला है वो लेने के लिए, और मैं वो मशीन आज तक ले नहीं पाया हूँ। तो इसका क्या मतलब, उससे होता क्या? नहीं, मशीन नहीं है तो मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी नींद पूरी नहीं होती है, तो मैं पूरा दिन थका रहता हूँ। उससे जो काम मुझे जो करना है, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है, उन कामों से मैं पीछे हटने लगता हूँ। उन कामों को जिस प्रकार मुझे निभाना चाहिए, कर्तव्यों को जिस प्रकार निभाना चाहिए, वो मैं नहीं निभा पाता हूँ। And I'm telling you, once you start falling into the zone of being lazy, it's not going to just remain lazy. It's going to fester into other sins also. It's going to push you to some things which are not right for you and right for your soul. अब आलस की दिक्कत ये है कि आलस सिर्फ आलस में ही नहीं निपट के नहीं रह जाता या वहीं ठहर नहीं जाता। अगर आपने आलस को अपने जीवन में पनपने दिया, आप अगर आलस में रहते हैं, तो आलस बाकी पापों को आपके जीवन में बड़े आराम से जन्म देने का मौका देता है और उन पापों में आप फिर बढ़ने लगते हैं। So take care of your physiological issues, get medicine, supplements, men and women of a certain age require certain supplements as they grow older. So figure that out with your doctors. But apart from that, there is a condition of one's heart. Sinfully, we are predisposed to being lazy because we do not think it's worth the work. It's worth our efforts to do the right kind of work. और अगर आपके शरीर में कुछ कमजोरी है, आपको लगता है कि कमजोरी आपको परमेश्वर के दिए हुए कार्यों से, उत्तरदायित्वों से आपको रोक रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उसकी जो ज़रूरी इलाज है उसको करवाइए, जिससे कि परमेश्वर के राज्य के लिए जो काम आपको करना चाहिए उसमें कोई बाधाएं नहीं आनी चाहिए। So first step is laziness, that plain simple laziness, which then once not addressed moves to procrastination. पहला चीज कि हमारे जीवन में आलस उत्पन्न होता है, और आलस को अगर हमने सही से उस पर काम नहीं किया तो हम लोग टोल मटोल करने लगते हैं, टाल मटोल करने लगते हैं। So what is procrastination? It's saying that, okay, I'll try to do it later, I'll do it tomorrow, day after. And we keep pushing things away, thinking that we will do it later. But then we are already in a second stage of our slothfulness. हम लोग जब चीज़ों को टाल मटोल करने शुरू कर देते हैं, तो आप इस बात को समझिए, आज ये बात को समझिए कि आपके जीवन में आलस है, और आलस के कारण आप अब सारी चीज़ों को जो ज़रूरी हैं उनको आप टालना शुरू कर चुके हैं, उस पर टाल मटोल करना शुरू कर चुके हैं। And I said that we can be a church which is lazy, and we can also become a church which procrastinates. That is why we believe in the 11th hour business of doing things. So, it's time for us to examine our lives, not just as individuals, families, but also as a church. Where do we stand in our responses? Are we procrastinating? Now, if you are in that zone of procrastination, which says, I'll do it later, you're pushing yourself to be in the third stage of laziness, which is what? Despair. और अगर आपको लगता है कि आप जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे ही वो आपके सामने आती हैं, आप कहते हैं चलो कोई नहीं, कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, आप चीज़ों को जैसे टालना शुरू कर रहे हैं, प्रिय अजीज़ों, आप इस बात को समझिए कि आप आलस को अपने जीवन में जगह दे चुके हैं, और उसका जो है वो कलीसिया में प्रत्यक्ष होने लगता है। कलीसिया की चीज़ें भी हम लोग टालने लगते हैं, जो चीज़ें हमें करनी चाहिए हम लोग उन चीज़ों को भी टालने लगते हैं, क्योंकि व्यक्ति से क्या बनता है? परिवार बनता है, परिवार से क्या बनता है? कलीसिया बनता है। और इसलिए व्यक्ति अगर आलसी हो तो परिवार आलसी परिवार है तो कलीसिया आलसी है। उस प्रकार आप आलस में शुरू करते हैं, फिर टाल मटोल में जाते हैं, और तीसरा आप निराशा की अवस्था में पहुंच जाते हैं। What is the stage of despair? The stage of despair is nothing but saying,
I can't do it. It's just beyond me. और आप एक आशाहीनता के, एक मायूसियत के एक जगह पर पहुंच जाते हैं कि अरे अब ये मुझसे नहीं हो पाएगा. Now that's a stage where we give up. We are just okay. This is beyond me. I cannot do this. I cannot read that book. You see, I've never read. I'm not a reading person. I don't want to read the book. Or for me, getting up in the morning is difficult. So I don't want to overcome. So we are like, okay, we've given up. Put up our hands. And like, okay, we don't even want to try getting out of it. तो जब आप अपने जीवन में चीज़ों को देख के बोलना शुरू कर देते हैं कि अब ये मुझसे नहीं होगा, तो इस बात को आज आप समझिए कि आप वहाँ पर तुरंत नहीं पहुँचे हैं. शुरुआत कहाँ से की आपने? या हमने आलस से शुरू किया, फिर हमने उसको टालना शुरू किया, फिर टालने के बाद हम कहाँ पहुँच गए हैं कि अब ये मुझसे नहीं हो सकता. मायूसियत, आशाहीनता और निराशा की इस अवस्था में हम पहुंच जाते हैं. And the fourth stage then becomes the stage of apathy, which is what? I no longer care. और उसके बाद हम निराशा, मायूसियत से हमको लगता है कि अब मुझसे हो ही नहीं सकता. हम लोग उदासीनता की उस भाग में पहुंच जाते हैं, क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां पर हम कहीं ना कहीं कहने लगते हैं अरे क्या फर्क पड़ता है, मत करो, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है. Apathy is nothing but an anti-God outworking of our human souls. और अगर आप उदासीनता को देखेंगे तो वो हमारे जीवन में बिना परमेश्वर से जो हमारा जो जीवन है उसको उसको वो परमेश्वर की खिलाफत में हमारा जीवन है उसको दिखाता है. And that's something which we want to be careful about. और ये एक ऐसी चीज है प्रिय अजीजों जिस पर हमें बहुत ध्यान देना है. Because once you enter that stage of I don't care, I no longer care, क्योंकि आप जब इस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां पर आप हर चीज के लिए बोलने लगते हैं कि अरे यार मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, you're not in line, you've not aligned yourself to the heart of the living God of the Bible who cares, and that's how he created this world. तो आप इस बात को याद रखिए कि आप जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, जो परमेश्वर हर चीज के लिए कहता है कि मुझे उससे फर्क पड़ता है, आप उसके हृदय से बहुत दूर जा चुके हैं. Therefore, in today's evening, we're going to talk about overcoming laziness with good work. इसलिए आज की शाम जो है हम लोग देखना चाहते हैं कि इसके अब हम करें क्या. अगर हम इन क्षेत्रों में हैं, इन पड़ावों को हम पार कर चुके हैं तो हमें क्या करना चाहिए. तो हम देखेंगे कि आलस को अच्छे भले कामों से हम कैसे उससे उभर पाते हैं. So it is must that we know and understand what do we do with the majority time that we have on a daily basis in our commitment to who Christ our Lord is. और हमें बहुत ज़रूरी होना, हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो समय हमारे हाथ में है, जो हमारे पास है, उसका हम क्या उपयोग कर रहे हैं और क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसकी सेवकाई के लिए उपयोग कर रहे हैं कि नहीं. And therefore, to understand what kind of work is this and what is this good work, we need to understand or put our life, our work in a context, in a story. It's one second. Naveen, I think you have to switch off this AC. The water duct is not connected. Yeah, sorry. Just repeat. In order to understand what this good work is all about and why is this a good work, we need to put this good work and our life in a context of a story. और भला काम क्या है, भला काम कैसे करते हैं, उसको समझने के लिए हमें इसे एक कहानी के संदर्भ में देखना जरूरी है. As one scholar says, human beings have an inherent need to put themselves into a story which gives them a hope and purpose. और एक व्यक्ति इस पे टिप्पणी करते हुए कहता है कि मनुष्य कहीं ना कहीं हर चीज में कहानी चाहता है, जिससे कि कहानी से उसको समझ में आता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है और उसकी आशा क्या है. See, every religion has a story. और जो भी आप धर्म को देखेंगे उसमें एक कहानी को आप देख सकते हैं. And even non-religious people will also have a story. जो लोग धर्म पे विश्वास नहीं करते हैं वो भी अपने लिए कहानी जरूर बनाते हैं. Animals don't tell each other stories. जो जानवर हैं वो एक दूसरे को कहानी नहीं बताते But हैं. we have stories. परंतु जब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो हम लोग कहानियों में बात करते हैं. And we interpret our life, in the light of those stories. और उन कहानियों के आधार पर हम अपने जीवन को समझते हैं. So in the past when things were happening in the society, my friends who were
non-Christian friends, they would immediately quote Ramayana or Mahabharata to interpret what was happening in a particular scenario. जब सोसाइटी के जो इश्यूज चल रहे थे, सारा दिक्कतें जब हो रही थी, तो हमारे जो सोसाइटी के जो लोग हैं, जो अविश्वासी हैं, वो रामायण या महाभारत का उदाहरण लेके समझने की कोशिश करें या बाकियों को समझाने की कोशिश करें, तो देखो ये हो रहा है यहाँ पर. Therefore, we need to understand our story, our work in the scope of the story of God, how He reveals it to us in the pages of the और Scripture. इसलिए परमेश्वर के संदर्भ, परमेश्वर की जो कहानी जो है, जो हमारे सामने दिखती है, उस कहानी के आधार में हमको काम समझना बहुत जरूरी Because है. when you have that story, that grand story of God as He reveals Himself in the Scripture, you put your work in it. There, that generates the vision for your work. और That generates the vision for your life. और जब आप परमेश्वर की जो कहानी जो इन बाइबल के पन्नों से हमारे सामने उजागर होती है, और उसके बाद जब आप अपने आप को और अपने कामों को उसके आधार पर देखते हैं, तब आपको एक दृष्टिकोण आपके सामने आता है, जिस दृष्टिकोण से आप अपने जीवन को और अपने कामों को समझ पाते And हैं. in that story, when you make a cup of tea, as mundane as that, it doesn't become drudgery. It becomes an act of hope for yourself and for the person you are serving. और जब आप परमेश्वर की कहानी को, परमेश्वर जो हमारे जीवन में कर रहा है, उसको जब आप समझते हैं, और उस संदर्भ में जब आप शायद एक चाय बनाकर किसी को पिला रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत छोटा सा है और या आपके लिए बड़ा मुश्किल सा काम हो सकता है, तभी आप उस कार्य को, उस चाय पिलाने के महत्व को समझ पाएंगे आपके जीवन के लिए और जिसको आप पिला रहे हैं उनके जीवन के And लिए. if you do not have the story, the particular story of the Bible, परंतु अगर आपके जीवन में बाइबल का जो कहानी जो है वो साफ नहीं है, then I quote, work becomes a means of self-gratification which only pushes towards self-centeredness. और फिर आपके जीवन में जो भी आप कर रहे हैं ना प्रिय अजीजों, वो आप अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपने आप को महत्व लाने के लिए, अपने आप की महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए आप सारे कामों को करना शुरू कर देंगे. So there are three things that I would like to address under the theme overcoming laziness with good work. तीन चीजों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. First is the derivation of work or the source of work. पहला कि काम का स्रोत क्या है, Two, the DNA of work. कि और दूसरा कि काम की संरचना क्या And है, thirdly, we're going to address the topic of determination to work. और तीसरा कि हम धाड़स कहां से लाते हैं काम करने के लिए. Derivation of work, DNA of work, determination to work. स्रोत क्या है, उसकी संरचना क्या है, और उसको करने का जो धाड़स जो हम कहां से लाते So हैं. first thing, let's look at the derivation of work. पहला चीज काम का स्रोत क्या I है, want you to turn with me to Genesis 1 and 2. और मेरे साथ उत्पत्ति उसकी पहली अध्याय 1 और दूसरी आयत को खोलिए. And probably these are Bible's most profound, beautiful verses as Bible opens up to our life. और बाइबल के बड़े सुंदर ये दो कुछ आयतें हैं जब बाइबल अपनी कहानी को अपने श्रोतागणों के सामने रखने की In the कोशिश कर रहा beginning, है. God created heavens and the और earth. बाइबल शुरुआत कैसे करता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और The earth was without form and void, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी and थी, darkness was over the face of the deep, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, and the Spirit of God was hovering over the face of the water. तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा Now, रहा था. as these verses open up, जब ये आयतें शुरू हो रही what हैं, follows is a 6-day creation plus 1 a day of rest. यहाँ उसके बाद हम 6 दिन की सृष्टि को देखते हैं और साथ साथ एक दिन जहां पर परमेश्वर विश्राम कर रहा है. So what is significant in this passage? इन आयतों से हम क्या सीखते हैं या क्या महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं? The first significant principle you learn is that God is the first worker. तो पहली चीज जो आप समझते हैं प्रिय अजीजों, कि परमेश्वर जो है वो स्वयं एक काम करने वाला है. You work because God Himself is a worker. आप इसलिए काम करते हैं या हम इसलिए काम करते हैं क्योंकि परमेश्वर स्वयं
काम करने वाला God is परमेश्वर not a है। lazy God. पर हमारा जो परमेश्वर है वो एक आलसी He परमेश्वर नहीं believes in है। getting his hands dirty. वो एक ऐसा परमेश्वर है जो कि चीजों को करने के लिए अपने हाथों को गंदा करने के लिए तैयार है। And therefore, this is significant for us as a learning. और इसलिए ये हमारे लिए, हमारे सीख के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Because our work comes in the story where work is not beginning in us, but in God Himself. क्योंकि हमारी कहानी कुछ इस प्रकार सही होनी चाहिए जहां पर हमारा जो काम है हमारे अंदर नहीं शुरू होता परंतु परमेश्वर में शुरू होता है। Therefore, who and what and how we should work comes from not our planning, our understanding, our qualification. It comes from who God is and His character, His nature as revealed in the scriptures. इससे प्रिय चीजों में क्या करूं, कैसे करूं, कौन सा काम करूं, कौन सी नौकरी उठाऊं ना उठाऊं, वो आपकी योजना नहीं, आपकी परियोजना नहीं, आपका सोच नहीं, परंतु परमेश्वर के चरित्र, परमेश्वर का जो स्वभाव है उसके अधीन से, उसके आधार पर आपका काम का सारा जो सोच है निर्भर होना चाहिए। Going by the first chapter of the Bible, God could have just instantly said and created things on its own without, taking the 6-day process. I mean, it's a beautiful chapter. It's how, we'll come to that sometime later. But what I'm trying to get is, God lays down 6 days of work and 1 day of rest to humanity. और यहां पर परमेश्वर शक्तिशाली सार्वभौम परमेश्वर है। चाहे तो वो एक शब्द में सब कुछ सबकी सृष्टि कर सकता था, परंतु वो एक सिद्धांत को यहां पर मानवता के सामने रखता है। 6 दिन काम किया, 1 दिन आराम किया। He is like an artist at a masterpiece, working on a masterpiece of a creation. यहां पर एक ऐसे चित्रकार को हम देखते हैं जो एक बहुत ही सुंदर चित्र को बना रहा है। Why is he working? यहां वो क्यों काम कर रहा है? Why is he creating? यहां पर परमेश्वर क्यों काम कर रहा है, क्यों सृज रहा है? One fine morning he said, okay, let's have fun. Trinitarian discussion, dialogues, Okay, let's have fun. Let's see how mountains look like, or how seas look like, or let's divide the land and the sea and see how wonderful they look like. ऐसा हुआ होगा कि शायद एक दिन सुबह उठकर त्रिएक परमेश्वर के बीच बातचीत चल रही है कि यार ये तो क्या करना चाहिए, चलो आज पर्वत थोड़ा बना के देखते हैं नदियां कैसे बहेंगी या महासागर दिखने में कैसा दिखेगा। शायद ये बात हुई, ऐसे शुरू हुआ है। But Bible reveals this God as a God who created, prepared, artistically worked through 6 days of creation in preparation to bring the crown creation of His, that is man, humanity. परंतु वचन क्या कहता है? मानवता के लिए, मनुष्य के लिए परमेश्वर ने एक छविकार के रूप में उस सुंदर सृष्टि को सृजा, जिससे कि वो उस शिरोमणि, जो सृष्टि की जो शिरोमणि था, जो मनुष्य था, मानव था, उसके लिए वो सृष्टि को तैयार कर पाए। So in verse 2 you have that phrase, waste and void. और इसलिए आप यहाँ पर दूसरी आयत में देखिएगा, बेडोल और सुनसान पड़ी Now थी। there's a lot of discussion about that. I'm not getting into those theological discussions. यहाँ इस आयत को लेके बहुत सारे बातचीत होती हैं, इस पे बहुत सारे टिप्पणियां की गई हैं। What the writer would want us to know is God is preparing something for man to arrive. यहाँ पर लिखने वाले का जो सोच है वो हमको ये समझाने की कोशिश कर रहा है वो कि मनुष्य के लिए परमेश्वर कुछ तैयार कर रहा है। Now the phrase waste and void, the Hebrew phrase, that's interesting. Okay, you can write that down. It's tohu wa bohu. Okay, that's the phrase, tohu wa bohu. Sounds funny, but that's what it is. Yeah, You know that. Okay, so the Hebrew phrase, what it means, it's just a neutral state. It's a state not ready for man to be brought in. और यहाँ पर And when I say man, I'm not talking about Adam, just Adam. I'm talking about Adam and Eve. और यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा परिस्थिति जो कि जहाँ पर तैयारी नहीं हुई है, वो समतल है या वहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, उस पर काम करना जरूरी है जिससे कि पहले परमेश्वर अपने सृष्टि को लेके आ सके। The land would be good for a lizard to live in, but not good for Adam and Eve to live in. You get the point? That's what is happening. बेडोल या सुनसान जो है वहां पर शायद चिपकली बड़े आराम से रह सकती थी, परंतु चिपकली के लिए नहीं बनाया गया था। मनुष्य के लिए लेखक जो ये कहता है कि संसार तैयार नहीं था। So what is tohu, as in waste and void, needs to become tov, T-O-V, said gutturally,
that is good. Tohu is waste, tov is good. और इसलिए जो चीज एक प्रकार बेकार पड़ी हुई है, बेडोल पड़ी हुई है, उसको अच्छा करने के लिए परमेश्वर को काम करना था। उस काम को हम यहाँ पर देखते हैं। So God takes what is waste and turns it into what is good. जो चीज बेकार थी, उस चीज को या कूड़ा कह सकते हैं, उस कूड़े को परमेश्वर लेता है और उसको भला बना देता है। In other words, kuda would be a very harsh word. What is inhabitable is turned to be habitable. जो चीज जहां पर कोई रह नहीं सकता था, उस जगह को परमेश्वर ने लेकर एक रहन स्थान मनुष्य के लिए बना दिया। Now read verse 2 of chapter 2. And on the seventh day, God finished his work that he had done, and he rested on the seventh day from all his work that he had done. दूसरी अध्याय उसकी दूसरी आयत, और परमेश्वर ने अपना काम जैसे वो करता था सातवें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। Who becomes the first worker in the human history? तो मनुष्य के इतिहास में पहला काम करने वाला कौन बनता है? God. Any doubts there? No. So, who becomes the source of our work? तो हमारे स्रोत जो है जिससे हम समझते हैं, वो कौन बन जाता है यहाँ पर? परमेश्वर। In other stories of creation, whether you take the Mediterranean or the Egyptian or the Babylonian or the Grecian stories of creation, you would understand that the idea, the concept was God's created the earth, but then they understood that earth was, not, they couldn't manage it, so they created human beings on the face of the earth so that human beings will manage it. और जब आप बाकी सृष्टि की कहानियों को जब पढ़ते हैं, या मिस्र देश की जो शुरुआती कहानियां हैं, यानी तो या बैबिलोनियन जो क्रिएशन अकाउंट है, या सृष्टि का जो उनका जो समझ जो है, अगर आप उनको पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप इस बात को देखते हैं कि वो इस बात को हर जगह लिखे हुए हैं कि परमेश्वर ने जगत को बनाया, संसार को बनाया, पृथ्वी को बनाया, बनाने के बाद उनसे संभला नहीं। जब संभला नहीं तो उनको लगा अब क्या करना चाहिए, तो उन्होंने तब जाकर मनुष्य को बनाया कि एक अपने कि जिससे कि वे जाकर संसार को या पृथ्वी को ध्यान से देख पाएं। But none of these stories capture God, putting his hand into the mud and carving out a man from that. In other words, God gets his hands dirty. These other stories do not capture this because it's unbelievable for them that God could get his hands dirty. बाकी धर्मों में या बाकी जो हम लोग जो देखते हैं, या वो इजिप्शियन हो या बाकी उसमें इस बात को वो समझ भी नहीं पाए कि परमेश्वर मनुष्य को बनाएगा, उनकी सृष्टि अपने हाथों से करेगा, इस बात को वो समझ नहीं पाए। सिर्फ मसीह धर्म में आप इस बात की लेखन को पढ़ सकते हैं। Therefore, the source of work is in God. The culture of work belongs to the heart of God and not the heart of man. इसलिए प्रिय चीजों, काम का जो तरीका है, प्रचलन जो है, वो मनुष्य से शुरू नहीं होता। किससे शुरू होता है? हमारे वचन मसीहों के लिए परमेश्वर में काम का स्रोत परमेश्वर से शुरू होता है, परमेश्वर से इसका प्रचलन शुरू होता है। Dorothy says work, any kind of work is creative activity. और डॉर्थी सेयर्स इस बात को कहती है कि कोई भी काम जो है वो एक सृष्टि, नई चीज को बनाने का काम है। And that begins in God. She alludes to the fact that it begins in God because God created what is good, not to the benefit of self, but to the benefit of the other. और इस बात को वो कहती है क्योंकि काम जो है परमेश्वर से शुरू होता है, परमेश्वर रचनात्मक है, इसलिए वो कहती है कि वही चीज मनुष्यों में आ चुकी है। मनुष्य जब काम करता है तो वो रचनात्मक रूप में करता है। Because work finds its source in God, क्योंकि काम जो है अपने स्रोत को परमेश्वर में पाता है। work is not merely about survival. काम जो है कि कैसे भी मैं बच के निकल जाऊं, Work ऐसा is नहीं। not merely about self-establishment. काम इसलिए नहीं कि जिससे आप अपने वर्चस्व को काम करें, But work is about benefiting
other. काम जो है प्रिय जीसु वो इसलिए है, परमेश्वर ने इसको शुरुआत इसलिए करी है जिससे कि दूसरों का भला हो। Work is therefore not competition, but completion of what lacks in the other. और इसलिए काम जो है दूसरों के साथ प्रतियोगिता नहीं है, परंतु काम आप इसलिए करते हैं जिससे कि बाकी में अगर कोई कमी घटी है वो आपके काम के द्वारा उस कमी घटी को पूरा कर That is पाए। why we should become a church which works to complete, not to compete with each other. इसलिए प्रिय अजीजों, कलीसिया सीबीएफ द्वारका जो है एक ऐसी कलीसिया बननी चाहिए जो एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता में नहीं लगी हुई है। That is why this church doesn't have one man pastoral role, ship where he drives everything. Not one man is complete and can handle everything. Not just 5 elders right now we have. They cannot handle everything. We work together not in competition but with the heart of completing what is lacking with the other. इसलिए प्रिय चीजों, यहाँ पर एक व्यक्ति, एक पासवान सारी चीजों को नहीं चलाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 जो प्राचीन हैं, एल्डर्स हैं, वो सारी चीजों को चलाते हैं। हम लोग एक ऐसी कलीसिया अपने आप में पाते हैं क्योंकि परमेश्वर की तरफ से वो है जिससे कि हम एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता में नहीं, एक दूसरे की खामी को, कमी घटी को पूरी करने के लिए हम साथ में मिलकर काम We करते are also हैं। not lone rangers. हमको जो मर्जी में आया, हमारे मन मर्जी में जो आया, वही हमने किया. We are not even like that. We gather together. We are just, planning for the offsite for the first time in our history. We are looking at planning a year ahead and not in the 11th month before we go. And there's a planning group that is happening, and I'm so happy to see how things are moving fast. So what is lacking is being completed by someone's effort to move on. और जैसे कि हम में से कोई हैं जो बिल्कुल आखिरी समय पर सब चीज करना पसंद करते हैं, उसी को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने शायद कोई और को लेके आया है जो कि इस कमी को, जो हम लोग हर चीज आखिरी में करते हैं, वो पहले कर ले, जिससे कि ये काम जो ऑफसाइड का भी अगर काम है वो अच्छे से हो पाए, बढ़िया से हो पाए। But if you sit home and say, I don't feel like it, और अगर आप दूसरा तरीका इसको देखने का ये है कि अरे क्या, मैं घर पर आराम से बैठा हूं, मैं घर पर आराम करूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, इससे मेरे जाने से दूसरों को भी क्या फर्क पड़ता है, then you are lazy and a non-contributor to the planned purposes of the kingdom of God. तो प्रिय चीजों, सिर्फ आप अपनी कमी घटी नहीं है आपकी वहां पर, आप खुद काम नहीं कर रहे हैं, आलस में हैं, परंतु साथ साथ परमेश्वर के राज्य के लिए जो आपको मेहनत करनी है, जो आपको साथ में मिलके आपको काम करना है, उससे भी आप अपने हाथों को धो दे रहे हैं। God cares about our Monday to Saturday 9 to 5 or Monday to Friday 9 to 5, what we do at our office spaces. हम लोग जहां पर कार्यरत हैं उसमें भी परमेश्वर वो देखता है, वो उसमें रुचि रखता है कि हम क्या कर रहे हैं। Because look at the 6 days of creation. आप यहां पर 6 दिनों को देखिए जो सृष्टि का है। God reaches on time. Everything is on time. He reaches work on time. यहां पर परमेश्वर जो है समय पर हर चीज को कर रहा है। There was an evening and then a morning, right? एक शाम हुई फिर सुबह हुआ। That is, God came back to work in the morning. तो जिसका मतलब है कि परमेश्वर सुबह काम करने के लिए आया। For us, I mean, it's okay. We all have a range to wake up. But what I'm trying to say is, don't keep loving sleep so much that you forget to wake up to do the good work which you're called to do. और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप देर से, मतलब कि बहुत जल्दी उठ जाइए, मगर अगर नींद जो है या आपकी जो नींद जो है वो आप परमेश्वर के दिए कामों में बाधा उठा रही है या बाधा बन रही है, तो उस नींद के लिए आप सोचिए, उस पर ध्यान दीजिए, उससे बाहर आने की कोशिश करिए। I know women here who wake up at around 4, 3:30, 4:30. If you ask me to wake up at 4 o'clock, absolutely not possible. यहाँ पर कुछ है जो हमारी बहनें हैं, वो 4:30 बजे उठ जाती हैं, मुझसे बोले तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। But I can probably look at 6:30, 6:45, 7. 7 is sweet spot for me. 7 बजे तक करीब मैं उठ सकता हूँ। But don't drag it too much. मगर ऐसा भी नहीं हो कि आपको कुछ काम करना है, आपको नींद इतना पसंद है कि आप
वो उस काम को किसी और के हाथ में थाल दिए और आप आराम से वहां पर सो रहे हैं। So don't make it at 11 o'clock where I have to say, Anushka, wake up, wake up. अब इसलिए अनुष्का, you got it right. All right, good. Let's show up on time for work. प्रिय चीजों, हम इस बात को वचन से देखते हैं। पहला जो इस सिद्धांत को देखते हैं कि समय पर सृष्टि बनी हुई, इसलिए हमें परमेश्वर इस बात को समझाने की कोशिश करता है कि हम भी समय से चीजों को करें, समय पर चीजों पर पहुंचने की कोशिश Let's करें। diligently work through the day at our workspaces. जब हम लोग जहां पे भी हम कार्यरत हैं, जो जिस ऑफिस में हम काम करते हैं, जो काम हमें दिया गया है उसको अच्छी तरह करना सीखें। There are young mothers here. यहाँ पर जब अभी कुछ माएँ जो अभी सिर्फ माँ बनी हैं, And homemakers here. जो घर पे काम करती हैं, You have a valuable work. You may not be thanked and paid for what you do. आपको शायद तनख्वाह नहीं मिलती होगी जो काम आप कर रहे हैं, परंतु मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण काम को कर रहे And it's हैं। not something career. It's not a career option. अगर आप उसको एक देखिए कि क्या मैं कोई काम कर रही हूं, तो वो शायद काम नहीं होगा, कोई कार्यकृत काम नहीं होगा। But you are making something. You're making a life. You're creating, building up a young life and a young home. मगर आप एक रचनात्मक कार्य में अपने आप को पा रहे हैं, आप बना रहे हैं, एक जीवन को खड़ा कर रहे हैं, एक जवान एक परिवार को आप ढाल रहे हैं। उस बात को समझिए, आप इतनी मेहनत, इतना महत्वपूर्ण काम को कर रहे हैं। Something as ordinary as that is significant in the eyes of God, in the economy of God, in the kingdom of God. प्रिय जीजों, परमेश्वर की आंखों में, परमेश्वर के लिए ये घर का जो काम आप कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। Bible says in Ephesians 2:10, we are his workmanship created in Christ Jesus for good works. और इस बात को हम लोग इफिसियों में देखते हैं कि हम परमेश्वर की सृष्टि हैं और उस अच्छे कामों के लिए हमें बनाया गया है। Or Ecclesiastes 9:10 says, whatever your hand finds to do, do it with all your might. और इस Okay, let's turn to Ecclesiastes 9:10. It's interesting. सभा उपदेशक को हम देखेंगे, 9:10. 9वीं अध्याय 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। सभा उपदेशक 9वीं अध्याय 10वीं आयत। What does it say? इस प्रकार लिखा गया है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। और जो काम मिले, तुझे मिला है, उसे शक्ति से करना. Do it with all your जी जान से, with energy, with might, with strength. Yes, Shifa? जो भी काम हमको दिया जाता है, जो हमें काम परमेश्वर के आधार पे जो हमें काम मिला हुआ है, चाहे वो जो भी काम हो, वो ऐसा एकदम रोते हुए अरे ये क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं, वैसा नहीं, पूरी ऊर्जा के साथ उस तैयार होकर उस आनंद के साथ उस कर्तव्य को निभाना सीखें। Colossians 3:23. Turn there. कुलोसियों 3:23 को मेरे साथ देखिए। 3:23. कुलोसियों उसकी 3री अध्याय 23वीं आयत को जरा मेरे साथ देखिए। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। Do what you do with wholeheartedly do this work. जो भी For you do as to the Lord, not to men. जो भी तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। So John Piper says to fight laziness in your life, you need to have a robust theology of what work, a good work is all about. और जॉन पाइपर कहते हैं कि अगर आप काम को ठीक से करना चाहते हैं ना, जो कर्तव्यों को आप fight laziness. जो कर्तव्यों को आपको दिया गया है उसको करने के लिए अगर आप आलस से सही में जूझना चाहते हैं, उससे लड़ना चाहते हैं, तो उस कर्तव्य को उस परमेश्वर के आधार में जो काम को समझना कि परमेश्वर का दिया हुआ काम है, वो बहुत जरूरी है। So whether it is you're getting up, being productive, making something happen, creating something, cleaning a room, washing a car, fixing brakes, writing a computer program, tending to a sick person, or making a good meal, all of these things are blessed by God as something He wants His co-makers and co-workers to do. John Piper says that. और जॉन पाइपर कहता है कि जो लंबी सूची है उसमें आप कुछ भी
अपने आप को देख लीजिए, छोटा काम या घर पे खाना बनाना, कमरा साफ करना, या बड़े बड़े प्रोग्राम्स को लिखना, या छोटा सा आप अपने गराज में काम कर रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो उसको पूरे मन के साथ, शिद्दत के साथ करना बहुत जरूरी है। To explain this better, we'll go to the next point. और इसको समझने के लिए हम लोग दूसरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। So we derive our work in God, तो हम because लोग- God is the first worker. हमारा स्रोत कहाँ का? परमेश्वर। हम काम कहाँ से सीखते हैं? काम का स्रोत कौन है? परमेश्वर है। जब Is your God a lazy God? क्या आपका परमेश्वर एक आलसी परमेश्वर है? Then why are we lazy? तो अगर That's a question परमेश्वर to take back home. this अगर evening. परमेश्वर जिस काम को हमारे सामने रखता है, अगर परमेश्वर आलसी नहीं है तो हमारे जीवन में आलस कहां से उत्पन्न होता है? So if the derivation of work is God, then the DNA of work is love. अगर परमेश्वर काम का स्रोत है तो उसका जो संरचना जो है वो प्रेम है। The character of work or the DNA of work is seen in Genesis 1 and 2. उत्पत्ति 1 और दूसरे अध्याय में हम लोग संरचना, काम के जो संरचना को देखते हैं। Verse 28 of chapter 1 says, God said to them, be fruitful, multiply, fill the earth and subdue it and have dominion. और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। And now turn to Genesis 2:15. उत्पत्ति 2 उसकी 15वीं आयत को And I देखिए, want you to underline that. इसको रेखांकित करिए। Why don't we keep it like a, instead of Jeremiah 29:11, we should keep this. For Lord God took man and put him in the Garden of Eden to do what? To do what? To put a beachside this thing and laze around, right? कि यहाँ To पर lead a life of retirement, right? 15वीं I आयत mean, this is paradise. Oh, just let's relax out here. 15वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? तब परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें क्या करे? क्या करे? काम करे और उसकी रक्षा करे। वहां पर यह नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने अच्छा बहुत बढ़िया सृष्टि बनाई है, बड़ा सुंदर दिख रहा है, तो एक झूले में बैठ जाते हैं और इस सृष्टि को निहारते रहते हैं। काम देखो, फल तो इधर सब लगा हुआ है, हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उसका आनंद लेना है। वैसा यहां पर नहीं लिखा So गया this है। man's work is linked to God's work. और अब यहां पर क्या हुआ है? परमेश्वर का जो, मनुष्य का जो काम है परमेश्वर के काम से जुड़ गया For है। God took Adam and put him in Eden, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को लिया और उसको वाटिका में रख दिया, and now is asking, commanding और यहां पर अब वो एक आज्ञा दे रहा है to work and to keep. कि तुम उसको, उसमें काम करो और उसकी रक्षा करो। If God worked out of love for man, प्रिय चीजों, अगर परमेश्वर मनुष्य के प्रेम के कारण उसने काम किया, why should Adam and Eve work in the garden? तो सवाल ये What है, motivation? तो सवाल ये है कि किसके लिए आदम और हव्वा को आदन की वाटिका में काम करना चाहिए? For the sake of the love towards God and to the other. क्योंकि वो परमेश्वर के लिए जो उनका प्रेम है उसको समझते हुए वो परमेश्वर के लिए और अपने साथ में जो दूसरे के लिए वो काम को Now, करेंगे। look at verse 28. 28वीं आयत को जरा देखिए। Be fruitful and multiply. यहां पर लिखा गया फूलो और फलो, And 2:15 says, work and keep it. और 2:15 में लिखा गया है काम करो और रक्षा करो। Do you see the linking? आप यहां पर वो जोड़ को देख पाते हैं? When God says be fruitful and multiply, the only way to be fruitful and multiply, in other words, the only way to flourish is to do the work out of love for God and love for the other. और अगर यहां पर फूलो फलो जो आप 1:28 में देखते हैं उसकी पूर्ति को अगर आप 2:15 में देखते हैं काम करने के लिए, उसका यही मतलब निकल सकता है। अगर आपको सही में फूलना फलना है, उस उद्देश्य को पूर्ण करना है, तो उस काम में प्रेम के साथ काम करना है परमेश्वर के लिए और अपने सह मानव के लिए। You should do work and choose work for more how it helps the other people and the community, and not just self-elevation, self-establishment, self-propagation. इसलिए प्रिय चीजों, हम भी जो काम लेते हैं, या अगर एक और उदाहरण लिया जाए, शायद हम जो नौकरी अलग उठाना चाहते हैं तो वो किस आधार पे हो? इस आधार पे हो जिससे कि परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी हो पाए,
कलीसिया में लोगों की सहायता हो पाए, बाकी लोगों की सहायता हो पाए, इसलिए आप काम को उठाते हो, काम करना शुरू So करते हो। they're kept in the garden to work and to keep it so that they be fruitful and multiply. वो उस बगीचे में, आदन के बगीचे में वो काम करने और रक्षा करने के रखा, जिससे के कारण वो फूले फले और उनमें बढ़ोतरी हो। This is not a laid back paradise experience. This is an active paradise where they're called to work. अगर बिल्कुल सिद्ध सृष्टि थी, देखा जाए तो कोई काम करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए थी। वहां पर वो आदम और हव्वा आराम से लेटकर उस सृष्टि का आनंद ले सकते थे, परंतु परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? काम करो और रक्षा करो, जिस कारण तुम फूलोगे, फलोगे और राज्य की बढ़ोतरी होगी। They have a mission. यहां पर उनके लिए एक उद्देश्य दिया गया है। They have a garden which they need to expand. उनके पास ये जो वाटिका है, उसको क्षेत्र को उनको बढ़ाना They है। have a family to expand. उनके परिवार है जिसको बढ़ाना है। And they have the presence of God to वो expand. परमेश्वर की उपस्थिति है जिसको बढ़ाना है। And what should drive us to work? प्रिय चीजों, सवाल फिर हमसे ये पूछा जाना चाहिए कि हमें काम करने के लिए क्या उत्सुकता है। It is a documented fact एक चीज जो कई जगह लिखा गया है, that in the World War II, दूसरे द्वितीय जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, that Englishmen found it satisfying to work not for pay or for career, but found it satisfactory to work for the fighting for their own country. और इस बात को कई किताबों में लिखा गया है कि जो ब्रिटिश के जो लोग थे, जो सोल्जर्स जो थे, उन लोग इस बात को उन्होंने कहा कि हमें नौकरी, हमको पैसा तनख्वाह मत दो, उसमें मुझे कोई आनंद नहीं मिलता है, मगर मैं अपने राज्य के लिए, अपनी राज्य की रक्षा के लिए मैं ये कर पा रहा हूं, उसमें मुझे ज्यादा आनंद और आराम मिलता है। And they did this by working and guarding. और उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने वहां पर काम किया और उन्होंने रक्षा करी। Yeah, the work and keep it is not a painful compulsion here. प्रिय चीजों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि उनके ऊपर एक तरीके से किसी ने ये आशीष है, उनके ऊपर श्राप नहीं दिया गया है कि तुम्हें काम करना है और रक्षा करना है। They will work and keep it because God was at work. वो काम करेंगे और रक्षा करेंगे क्योंकि उनका परमेश्वर काम करने वाला है, काम में लगा हुआ So है। God worked out of love, not out of compulsion. क्योंकि परमेश्वर ने जो है, परमेश्वर पे किसी के ऊपर, उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। काम करके सृष्टि बनाओ, मनुष्य को बनाओ, ऐसी किसी ने उसको धकेला नहीं था। So by nature, the DNA of work is love, and therefore work now becomes other-centered, not self-centered. प्रिय चीजों, इसलिए काम जो है ना, उसकी संरचना प्यार होती है, प्यार होता है। क्यों? क्योंकि आप इस बात को समझिए, आप जो भी काम में लगे हुए हैं, उसमें दूसरों की भलाई होनी चाहिए, दूसरों का फायदा होना चाहिए, दूसरों का उत्थान होना चाहिए। So it doesn't matter what kind of work you enter into. अब ऐसा नहीं कि अरे मैं ये इस काम में क्या फायदा होगा, ऐसा नहीं कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। I have to see if serving a cup of tea adds to the blessing of the kingdom work that I'm called for. परंतु प्रिय चीजों, आप इस प्रकार देखिए कि क्या मेरे चाय पिलाने से क्या परमेश्वर का राज्य की बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं। After all, we are created as gardeners, as farmers. हम सबको किसानों के रूप में बुलाया गया है, Gardeners with God, because God himself is a gardener. क्योंकि परमेश्वर जो है वो एक वाटिका को रचने वाला है। And this would mean that we may sometimes have to continue do the same thing over and over again. और इसलिए अगर आप माली को देखिएगा, माली थोड़ा ऐसे नहीं कि आज ये कर रहा है, कल कुछ और कर रहा है। माली क्या करता है? रोज उठकर वही काम बार बार करता रहता है, जिससे कि जो वाटिका जो है वो सुंदर दिखते रहे। Mali is never bored of his work. माली ये नहीं बोलेगा it could be, but that's not what work should look like. माली ये नहीं बोलेगा कि अरे आज मुझे पानी वानी नहीं देने, मैं बोर हो चुका पानी वानी देने से, आज मैं कुछ और करूंगा, कुछ तूफानी करूंगा। ये वो बोल ही नहीं सकता है। I met a school principal in US.
यूएस में मैं एक स्कूल के प्रिंसिपल से मिला। He was trying to explain to me the school system there, वहाँ की जो पढ़ाई का जो तरीका प्रणाली जो है वो मुझे समझा रहे and he थे। was talking about career options in terms of how you can climb higher in the school systems in US. और वहाँ का जो प्रणाली जो है वहाँ पर वो मुझे समझा रहे थे कैसे काम करके आप अलग अलग पोजीशंस में जाकर ऊपर पहुँच सकते हैं। He said, I chose to not take those promotions उन्होंने वो मुझसे बोल रहे थे कि मैंने जानबूझकर ये जो प्रमोशन जो है वो मैंने पाना पसंद नहीं किया, because I wanted to serve children. क्योंकि मेरा जो बुलाहट जो थी वो ये थी कि मैं बच्चों के साथ काम करूं। And I found that very interesting. He chose monotony. Please remember, he chose to do the same thing all his life without wanting promotion for the sake of the establishment of the children who he was teaching at that point of time. जरा देखिए, उसने अपने जीवन के बारे में शायद वो प्रमोशन लेता तो बढ़िया तनख्वाह और बढ़िया हो जाता, बढ़िया घर पे बढ़िया गाड़ी सब कुछ उसको मिल सकता था, मगर वो वही काम को, वो एक रास्ता को देखता है, उसी काम में लगा रहता है जो जिससे कि वो जो उसको पसंद है, जिससे कि लोगों का जो बच्चों का फायदा हो रहा है वो फायदा पूरा हो पाए। And our God loves monotony. और हमारा जो परमेश्वर जो है वो भी एक रस है, वो भी एक रास्ता उसको पसंद है। Every morning the sun will rise and the sun will set. अगर आप देखिए सूर्य से बात करेंगे कभी तो कितना बोर का काम है। सुबह सूर्यास्त होता है, सूर्य उदय होता है, फिर सूर्यास्त होता है। How boring for a God to do this every day. पर कितना बोरिंग है, कितना निरस काम है ये। No growth at all, God. अरे ये कौन No सा better career options. सूरज कहेगा ये क्या काम मुझे दे रखा है, एक ही काम में कब से करे जा रहा हूँ, सूर्योदय सूर्यास्त, मुझे कोई अच्छा काम दो, कुछ नया दो जो तूफानी लगे मुझे। You look at God and you like, okay, there's nothing new to him. He's just an age-old ancient of days. He has nothing new to his CV anymore. और अगर परमेश्वर को देखे, जो सृष्टि जो है वैसे ही चल रही है, हर चीज, कुछ नई चीज परमेश्वर ने अपने पास अपने सीवी में लगा या जोड़ नहीं लिया है। And here we are, कुछ नया पाना है, कुछ नया कर दिखाना है. We are running after, because suddenly what we do becomes boring. Suddenly we see there is no growth happening. Suddenly we are stuck. Suddenly there is stagnation. And here we are jumping like frogs from one place to the other. परंतु मनुष्य में क्या है, हमारे जीवन में हम चीजों से ऊबने लगते हैं, निरस्ता आने लगती है। हम लोग को लगता है कि अब यही काम, एक ही काम, उसी को बार बार हमें करना है, हम यहाँ पर घिस रहे हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोग उछलना शुरू कर देते हैं। जो भी हमें सामने समझ में आता है वो काम उठा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। उसमें क्या होता है ना, ये वाला काम ठीक होता है, जो काम हमें दिया गया है वो भी ठीक नहीं हो पाता है। There is love missing from what I do. प्रिय यीशु, अगर मैं जो कर रहा हूं उसमें से प्रेम अगर गायब कर दिया जाए, Love for God and love for the church. परमेश्वर के लिए जो प्रेम है और कलीसिया के लिए जो प्रेम है, अगर उसे मेरे जीवन से हटा दिया जाए, I'm telling you, I have the most boring job under the sun. तो मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि सबसे निरस अगर कोई काम हो वो मेरा होगा। But for a God, He loves the monotony. He keeps it consistent. He keeps it going because it's an action out of love for. परंतु परमेश्वर जो है वो क्योंकि प्रेम से वो काम करता है, उसको पता है कि वही चीज करने से उस निरस्ता के कारण ही जीवन बढ़ता है, प्रफुल्लित होता है, फूलता है, फलता है। इसलिए उसमें बदलावट नहीं करता, वही काम को करने लगता है। Now we come to the third point for this evening. I'll make it quick. Third is determination to work. और तीसरा जो है वो है काम करने के लिए जो हमारे जो ढाढ़स जो है। Now work all of a sudden because of sin that Adam fell in has become a drudgery. क्योंकि अब हमने पाप कर लिया है, पाप हमारे जीवन में आ चुका है, इसलिए अब हमको जो काम जो है परमेश्वर का दिया हुआ जो उत्तरदायित्व कर्तव्य है वही हमको एकदम परेशान कर देता है। In verse 17, last line, he says, "In pain you shall eat of it all days of your life. Thorns and thistles shall bring forth for you. It shall bring forth for you." और इसी बात को वो Chapter 3 verses 17 and तीसरे अध्याय उसकी 17वीं 17 last line and 18 first line. तीसरे अध्याय उसकी 17वीं के आखिरी भाग को देखिए। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटरे
उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। Sin has turned the world upside down. प्रिय चीजों, पाप के कारण ये जो संसार जो है उलट चुका है। So the good world and the good work has now become hard work. जो अच्छा काम था, प्रेम वाला काम था, अब वो कठिन परिश्रम बन चुका है। The work becomes toilsome, काम जो है वो कठिन श्रम बन जाता है। it becomes futile, वो खालीपन देता है and हमारे it is जीवन all में। about survival. और वो सिर्फ कि बस अपने जीवन को कैसे भी जी लूं, वो सोच में आपको ले In आता the है। original design of work was not about survival. अगर आप पाप के पहले काम की परिभाषा को देखेंगे, वो जीवन को बचाए रखने के लिए नहीं It was था। of completion and contribution to the वो- life of others. वो दूसरों के जीवन को पूर्ति करने के लिए, उसको बढ़िया करने के लिए काम दिया गया था। Chapter 3 work has become survival now. परंतु तीसरे अध्याय में जब पहुंचते पहुंचते हम लोग यहाँ पर जीवन को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए काम को पाते हैं। It's not the change in the work, but it is the change, the fallenness within us. यहाँ पर काम बदला नहीं है प्रिय जी, जो काम तो परमेश्वर से ही दिया गया था, परंतु मन की प्रवृत्ति पाप के कारण बदल चुका है। So some of us have made work an idol in our life. और इसलिए क्या हुआ है कि हम में से कुछ लोगों ने काम को जो है अपने जीवन में मूर्ति भी बना रखा है। Now we live for work, हम लोग काम के लिए जीते हैं। as in self-establishment, self-elevation. वो कब कहने का ये तात्पर्य है कि देखिए, मेरे काम में कोई बाधा नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा दिखना चाहता हूं, मैं और बेहतर बनना चाहता हूं। But if I say that Jesus redeems our work, will you believe that with me tonight? मगर अगर मैं इस बात को कहूं, प्रभु यीशु मसीह आपके काम में उद्धार देता है, क्या आप मेरे बात पे विश्वास करेंगे? As the children of God, gospel changes our heart. परमेश्वर के पुत्र होने के कारण सुसमाचार हमारे जीवन को बदल देता है। The longing of our heart is transformed as a Christian today. हमारे जीवन की जो मांग है, इच्छाएं जो हैं, सुसमाचार के कारण बदल चुकी We are हैं। not looking for our own elevation, but we are looking for the glory of God in what we do. प्रिय चीजों, आज हम लोग अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए देखते नहीं हैं, चीजों को नहीं करते हैं। हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए चीजों को Our करते हैं। identity should not be through competition at work or accomplishments or even our leisure or LinkedIn profiles. Our heart must be on things above because of the identity that we have in Christ. प्रिय चीजों, हम अपने पहचान को हम जहाँ काम करते हैं उस पे नहीं, लिंक्डइन प्रोफाइल पे नहीं, हम छुट्टियों में क्या करते हैं उस पे नहीं, परंतु परमेश्वर पे निर्भर होना चाहिए हमारा जीवन, हमारी जो सोच है। I want you to turn with me to Colossians chapter 3 verses 22 to 25, and I want you to underline it in your text this evening. कुलोसियों 3 अध्याय 22 और 23 आयत को देखिए। 22 से लेकर 25वीं आयत को हम पढ़ेंगे। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान देखने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगा। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करते हो वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पश्चाताप नहीं। You know, how many times did you read the word as for the Lord? यहां पर आप कितने बार आप इस शब्द को पढ़ते हैं, परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए। That's the determination to work. प्रिय चीजों, प्रभु के लिए जो शब्द है उसके लिए आपको ढाढ़स मिलता है काम Don't करने be के लिए। lazy. इसलिए आलसी मत बनिए। Please go to work. काम जो आपको दिया गया है, जो कर्तव्य आपको दिए गए हैं, उसको निभाइए। Paul says in elsewhere in book of Thessalonians that don't be busy as busy bodies. You understand? But work productively. यहां पौलुस इसी बात को थिस्सलुनी में कहता है कि ऐसा नहीं कि तुम भनभनाते घूम रहे हो जिससे कि लोग कहें कि अरे देखो कितना व्यस्त आदमी है, परंतु तुम कार्य करो जिससे कि तुम परमेश्वर जो जरूरी है उन चीजों को तुम उत्पाद कर पाओ। There is no greater insult to your Lord and my Lord if people point us to
point towards us and say, you are a lazy person. प्रिय चीजों, परमेश्वर के लिए इससे बड़ी कोई और हमारे लिए कोई इससे बड़ी दुखद बात नहीं कि लोग हमें बोले कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो। For our work is not for compensation. We talk about our salaries as compensations, right? It is for contribution. प्रिय चीजों, हम लोग जो तनख्वाहें जो लेते हैं वो तनख्वाहें सिर्फ इसलिए नहीं लेते हैं कि वो हमारी बढ़ोतरी हो, वो इसलिए है जिससे कि हम योगदान कर पाए लोगों के जीवन में। So each one is called to contribute. प्रिय चीजों, हम सबको चीजों में हाथ बटाने के लिए बुलाया गया है। Bible says everyone has been given a gift and we use the gift for the exhortation of the other. और वचन कहता है कि हर व्यक्ति, कलीसिया में हर व्यक्ति को एक दान दिया गया है, और वो दान इसलिए दिया गया है जिससे कि वो दूसरों का फायदा हो सके, कलीसिया में उससे प्रोत्साहित हो सके। So look at your city, look at your church, look at the things you love to do, look at your capacities, your interest. Those aren't just accidents, random patterns of your life. They are God given to you for you to work for the contribution that you can make to the benefit of the other and the kingdom of God. इसलिए जब आप शायद दिल्ली में बैठे हो तो ऐसे नहीं कह रहे कहां दिल्ली आ गए, उसको परमेश्वर का दिया हुआ आप दान और कर्तव्य समझिए। उस प्रकार से दिल्ली शहर को, यहाँ की कलीसिया को, कलीसिया की जरूरतों को, अब जो चीजें आप करना पसंद करते हैं उन सारी चीजों को देखिए कि आप किस प्रकार परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की कलीसिया में आप योगदान कर सकते हैं। What did Paul say in Ephesians 2:10? For we are his workmanship, created in Christ Jesus for what? Good works. Did we read that word somewhere else? The word good comes in the book of Genesis chapter 1 and 2. और जब पौलुस दूसरे अध्याय में, इफिसियन दूसरे अध्याय 10वें आयत में कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। So this evening I want to submit to you to explore how your work is a good contribution to the life of other and not just self-establishment or a self-elevation on your part, and not merely just survival. प्रिय चीजों, इसलिए मैं आज चाहता हूं कि आप अपने जीवन में विश्लेषण करिए, क्या आपका जो आप अभी जो कर्तव्य निभा रहे हैं अपने जीवन में, क्या वो अपने आप को कायम करने के लिए, अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए, या जीवन को जीने के लिए आप जी रहे हैं, या वो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए वो काम को आप वैसे निभा रहे हैं। Not enough to simply work because you have to work. Have a vision to your work. प्रिय चीजों, काम करने के लिए, अरे काम करके मैं बस जीना है मुझे, इसलिए मुझे काम करना पड़ रहा है, इसके लिए काम मत करिए। परमेश्वर का दिया हुआ काम है, उससे परमेश्वर की राज की क्या बढ़ोतरी हो सकती है, उससे क्या परमेश्वर के लोगों का फायदा हो सकता है, उस प्रकार सोचिए, उस प्रकार उस काम को करना सीखिए। We work with a vision, we work hard and we work to fight laziness because we believe in the hope of the coming of the Lord Jesus Christ to take us with him, and we will be with him in this world to rule over this world. प्रिय चीजों, काम निरस्ता के साथ करना बंद करिए, उस आशा के साथ करिए, उस प्रभु यीशु मसीह क्योंकि आने वाला है, एक दिन हम उसके साथ राज करेंगे, उस आशा से अपने जीवन में कामों को, कर्तव्यों को, उत्तरदायित्वों को निभाने की कोशिश करिए। Your contribution today is in the light of the coming glory of in Christ Jesus. प्रिय चीजों, जो आपका योगदान जो है वो प्रभु यीशु मसीह के आने का जो समय है उसमें वो दिखेगा, वो प्रतिलक्षित होगा। Jesus who took the flesh of man, God who took flesh of man, परमेश्वर जिसने मनुष्य का रूप धारण किया, in the night before he died, जिस रात से मरने से पहले, in John chapter 17 verse 4, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 उसकी चौथी आयत he में prayed to his Father वो इस प्रकार प्रार्थना करता as his है। men listened. और जब उसके शिष्य लोग सुन रहे थे, Now I want you to turn to that passage. मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इस भाग को जरा खोलिए। यूहन्ना 17 उसकी चौथी आयत। Jesus says, I glorified you on earth
having accomplished what? The work. The work यहाँ पर प्रभु यीशु gave me to do. प्रभु यीशु मसीह कहता है जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसको पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की He है। had one work उसके पास एक काम दिया गया and था he stood faithful to that work. और उस काम के लिए वो पूर्ण विश्वास He योग्य did बना। it to its end. उसने ऐसा नहीं कि शुरू किया और बीच में कहा कि अरे मुझसे नहीं होगा, मैं यहां से चला जाऊंगा। And पूर्ण किया And on the उसको। cross he said, "It is finished." और क्रूस पर चढ़कर मरते मरते वो कहा कि अब ये पूरा हुआ। His finished work was our benefit. प्रिय यीशु, उसके पूरे काम के कारण ही हमें लाभ, हम लाभार्थी बने, हमें लाभ हुआ। And today when we work, और इसलिए जब आज हम काम करते today हैं, when we work at home, at offices, at schools, at hospitals, at supply chain centers, you name it, you have a work environment, you have a work which can serve the benefit of the others. प्रिय यीशु, Carry that vision in your heart. प्रिय यीशु, जब आप इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे आप हॉस्पिटलों में कार्यरत हैं या सप्लाई चेन में कार्यरत हैं, घरों में काम करते हैं, आपका व्यवसाय है, आप जो भी कार्यों में लगे हुए हैं वो दूसरों की भलाई के लिए हो, उसको सोचते हुए आप अपने काम को निभाएं। The lazy you is an ugly you because laziness is an ugly sin to your soul. But a working you who works to contribute is a beautiful creation of God because God himself is beautiful worker when he works. प्रिय चीजों, अगर आप आलसी हैं तो वो आप करूप हैं, क्योंकि आलस जो है आपकी आत्मा को करूप बना देता है। परंतु अगर आप काम करने वाले हैं और उस उत्तरदायित्व से आप काम करते हैं, अपने काम को निभाते हैं, तो आप भी सुंदर बन जाते हैं, क्योंकि आप उस परमेश्वर के साथ, उससे परमेश्वर काम से अपने आप को जोड़ लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर सुंदर है, इसलिए आप भी सुंदर बन जाते हैं। 2 Thessalonians chapter 3, I'm so sorry, I'm just dragging it a little more, it just occurred to my mind. In chapter 3, Paul says, do not be idle. The word idling there is a word which mentions in your idleness you're a disruption to the plan and purpose of the living God. जब आप कहते हैं कि आप निरस होकर ऊब कर कहीं बैठ जाते हैं, तो आपको कहीं कहीं लगता होगा कि मेरे ना करने से क्या फर्क पड़ता है, मगर इस बात को मैं बोलना चाहता हूं, पौलुस इस बात को बोलता है, तुम्हारी निरसता, तुम्हारा ऊबना, तुम्हारी जो उदासीनता के कारण तुम परमेश्वर के राज्य की, परमेश्वर के काम में तुम बाधा बन रहे हो, इस बात को तुम समझो। तुम ऊब के निरस होकर, एक रस होकर तुम काम कहीं पर नहीं बैठ सकते, तुम काम में बाधा डाल रहे हो, बाधा बन रहे हो। We are co-workers with him. Our God works, we work for him, by him and to him. प्रिय जीजों, हम परमेश्वर के साथ सह कर्मचारी हैं, परमेश्वर काम करता है, हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से हम काम करते हैं। Any questions? Thank you.